Hello, students. Today, in this session, we will learn about the Micromedia Flash 1. Okay, this is a software which is useful for making the simple animations, okay, or flash files, we can say. Uh, in many advertisement companies, they're using Macromedia Flash Player and this Macromedia Flash editor. So how to start the Macromedia Flash? First, you have to go to start. You have to click on start button, then all programs, then Macromedia Flash 8, or double click on the Flash 8 icon on the desktop to start the Flash program. Okay, then the main screen will appear. In that screen you will get a menu bar. Okay, menu bar आएगा, then toolbox, stage or canvas, a blank page will come, then color mixer you will have, and library panel. The main parts of the flash screen are stage, timeline and panels. ओके, सो ये जो सॉफ्टवेयर है ये किसके लिए यूज़ होता है? छोटा एनिमेशन बनाने के लिए है, फ्लैश बनाने के लिए और सिंपल एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए ये जो है सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, जिसका नाम है मैक्रोमीडिया फ्लैश. Then when the Macromedia Flash will start, you will see the screen, okay, the home screen or the main screen. In that center of that main screen you will get a stage, जो वाइट आपको पूरा पेज दिख रहा है, द कैनवस और वी कैन से द स्टेज. ओके, वो जो है हमारा मेन स्टेज है या तो कैनवस जिसको हम कह सकते हैं, जिस पे हम अपनी ड्राइंग और एनिमेशन बना सकते हैं. द रेक्टेंगल पार्ट एट द सेंटर ऑफ योर फ्लैश स्क्रीन is known as a stage or the canvas. The different tools like text, drawing, shapes, etc. required to prepare flash animations are arranged here. तो यहाँ पे आप स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल सबका यूज़ करके अपना खुद का छोटा सा एनिमेशन बना सकते हो. Then we can use grid to properly arrange different objects like to be kept on the stage. फिर एक ग्रिड ऑप्शंस भी होता है व्यू में जाके, जिसके ज़रिए उसका प्लेसमेंट आप सेट कर सकते हो. देन द टाइमलाइन है ना, उसमें आप देखेंगे कि टाइमलाइन भी एक आता है. तो टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन इज शोन इन द अपर पार्ट ऑफ द स्क्रीन. The timeline shows the series of frames of animations. The upper part of timeline is assigned with the frame number. The first frame on the left side of timeline is with a red color and it is known as a playhead. When we start animation, the playhead moves from first frame to second frame to third, and so on. The lower part of timeline shows the boxes of current frames per second and elapsed times. टाइमलाइन में क्या है कि हम अपना जो फ्रेम्स है और पिक्चर है वो अपना सेट कर सकते हैं. तो जिस तरह से ही आप अपनी टाइमलाइन को एडजस्ट करेंगे उस हिसाब से हमारा एनिमेशन है वो रूप लेने लगेगा. ओके, सी द टाइमलाइन will look like this. You can see the keyframes number, the numbers are there. Okay, in this we will adjust our shapes, or we can add our extra like circles, rounds, pictures, shapes, etc. Then panel option. What is panels? So there are many different panels in the Flash, like tools, library, property, etc. The most important panel is tool panel, which is also known as a toolbox. जैसे कि हमने सब सॉफ्टवेयर में देखा है, वर्ड, एक्सेल, सब में हम देखते हैं ना टूल बॉक्स, वैसे ही यहाँ पे आता है टूल बॉक्स. Many tools of the Flash toolbox are similar to the paintbrush toolbox.
जैसे आप पेंट में देखते हो ना कितने होते हैं टूल्स, सब शेप्स होते हैं, फिर कैरेक्टर इनपुट कर सकते हो, इरेज़र होती है, वाटर का ब्रश होता है, उसी तरह इसमें भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। द प्रॉपर्टी पैनल्स कैन बी सीन एट द बॉटम ऑफ द फ्लैश स्क्रीन जस्ट बिलो द कैनवास। ओके, उसका स्टेटस भी दिखता है आपको नीचे। प्रॉपर्टी पैनल शोज द डिफरेंट ऑप्शंस टू चेंज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सिलेक्टेड टूल्स। Library panel is located on the right side of the flash screen. Library panel shows the list of buttons, drawings, and the movie clips added in the Flash project. The color mixer is just above the library panel and it is used to select the different colors. तो लाइब्रेरी जो पैनल है उसमें क्या है, डिफरेंट तरह के क्या है, ड्राइंग्स है, मूवी क्लिप्स है, कलर मिक्सर है, वो सब सारी जो हमारे रिसोर्सेज है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग में, वो होता है। ऑल दिस पैनल्स कैन बी क्लोज्ड और रीओपन फ्रॉम दैट ऑप्शंस ऑफ विंडो मेन्यू ऑफ फ्लैश। ओके, ये सब जो है पैनल्स, इसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हो या तो क्लोज भी कर सकते हो और उसको रीओपन भी कर सकते हो। कहाँ से? विंडो ऑप्शन में से। सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ टूल बॉक्स और टूल मेन्यूज, जिसमें बहुत सारे टूल्स है ना। सो मेनी टूल्स आर देयर, लाइक फर्स्ट वन सिलेक्टिंग टूल्स एंड सी द शॉर्टकट इज आल्सो गिवन, लाइक प्रेसिंग दैट की यू विल गेट दैट टूल विदाउट क्लिकिंग द माउस। तो अगर कीबोर्ड से कोई शॉर्टकट प्रेस करते हो तो वो टूल्स अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। दो एरो है देखो इसमें है, सिलेक्टिंग टूल्स एंड सब सिलेक्टिंग टूल। देन फ्रेम ट्रांसफॉर्म टूल, gradient transform tool, lasso tool, line tool, then pen tool, text tool, rectangle tool, oval tool, brush tool, pencil tool, then ink bottle, paint bucket, eyedropper, eraser, then view tools are there, hand tool, or zoom, then colors tool like a stroke color or fill color। ये जो सारे ऑप्शंस है वो नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल द पेंसिल टूल। पेंसिल टूल इज़ यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग। तो पेंसिल टूल से आप क्या बना सकते हो? फ्री हैंड ड्राइंग बना सकते हो। पेन टूल, अ टूल दैट ड्रॉस ऑटोमेटिकली लाइन्स कनेक्टिंग टू पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट बना दिए तो उसके बीच में क्या आ जाती है? लाइन्स। देन थर्ड वन इज़ लाइन टूल। दिस टूल इज़ यूज टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सीधी लाइन बनाने के लिए लाइन टूल यूज़ होता है। देन स्ट्रोक कलर। स्ट्रोक कलर यूज टू चेंज द लाइन कलर। जो भी आप लाइन बनाते हो या तो शेप्स की या कैरेक्टर की लाइन है उसका कलर चेंज करने की लाइन का, उसको बोलेंगे हम, जो टूल है उसको बोलेंगे स्ट्रोक कलर। फील कलर। फील कलर इज यूज टू सिलेक्ट द कलर टू बी फील इन अ क्लोज्ड डायग्राम। कोई भी शेप है या कैरेक्टर है उसमें आपको कलर फिल करना है तो उसके लिए कौन सा है टूल? फील कलर टूल है। देन पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल is used to fill color in any closed diagram. Using fill color bucket, select the color of your choice, then select the paint bucket tool too, so that mouse pointer will be changed to the shape bucket. Okay, फिर जो बकेट है उससे आप कहीं पे भी क्लिक करोगे तो उसमें वो कलर आ जाएगा। इंक बॉटल। इंक बॉटल क्या है? इंक बॉटल टूल इज़ यूज टू चेंज द बॉर्डर कलर ऑफ एनी डायग्राम। इससे क्या होगा, जो भी डायग्राम है या शेप है उसकी बॉर्डर का कलर चेंज होगा। देन ओवल। ओवल टूल इज़ यूज टू ड्रॉ अ सर्कल और ऑल शेप। रेक्टेंगल टूल। Rectangle tool is used to draw square or rectangle shape. Brush tool, like a pencil tool, we can draw freehand drawing using a brush. जैसे आप पेंसिल से फ्री हैंड ड्राइंग बनाते हो उसी तरह से ब्रश से भी बना सकते हो। Then eraser. Eraser tool is used to erase unwanted part of the diagram. अगर कुछ चीज़ आपने गलती से बना ली और इसको इरेज करना है तो किससे इरेज करोगे? इरेजर टूल से। ये सब बेसिक है जो अपने पेंट में सीखा है उसी तरह से है। देन टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल इज़ यूज टू पुट टेक्स्ट ऑन द स्टेज यूजिंग द कीबोर्ड।
कुछ भी कैरेक्टर या तो टेक्स्ट या तो कुछ भी लिखाई आपको डालनी है उसमें, लेटर्स कुछ भी वर्ड्स डालने हैं तो किससे डालोगे आप, टेक्स्ट टूल से। सिलेक्शन टूल, सो selection of any we can say entity, you can select anything using the selection tool. Free transform tool, using free transform tool we can reduce or enlarge the diagram and even we can stretch it horizontal or vertical direction. अगर किसी भी चीज़ को जैसे कि सर्कल बनाया उसका आपको शेप चेंज करना है या उसकी साइज़ बढ़ानी है तो किससे बढ़ाओगे, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से। Lasso tool, using lasso tool we can select the desired portion of diagram and on the stage. Selecting lasso tool and dragging the mouse randomly on drawing, you can select that part of the drawing. On this selected part you can do process like cut, copy or change the color. ठीक है, लासो टूल से क्या होगा कि जो भी कोई डायग्राम है उसका थोड़ा सा पार्ट आपको चेंज करना है, शेप चेंज करना है तो किससे करोगे आप, लासो टूल से। सब सिलेक्शन टूल, यूजिंग सब सिलेक्शन टूल वी कैन चेंज द शेप ऑफ योर एनी डिवाइस, एनी ड्राइंग, selecting tools and then clicking on the border of any diagram will display anchor point around the diagram. Dragging this anchor point using mouse we can make make our desired चेंजेस। लाइक हमने कोई स्क्वायर बनाया या तो सर्कल बनाया, उसमें अगर सब सिलेक्शन टूल से हम क्लिक करेंगे तो वो हमको क्या देगा, एंकर और पॉइंट, जिससे हम क्या कर सकते हैं उसका शेप थोड़ा बहुत हमारे मुताबिक चेंज कर सकते हैं।